Hello everyone, I am Ritika Zujwar, Assistant Professor IT Department. So in the course of the Artificial Intelligence, we discuss about Unit 3. The Unit 3 is based on knowledge representation and reasoning, where we discuss about the types of rule-based system. Okay, so in previous video we already discussed about what is meant by rule-based system, the constructions of rule-based system, examples, and what are the rule-based system techniques or the elements used in this knowledge representation, that is set of facts, set of rules, and some termination criteria. Okay, so in this video we are going to discuss about the types of rule-based system. So like the expert system, the rule-based system can be also characterized into forward chaining and backward chaining. So forward chaining is known as a data-driven reasoning. Forward chaining, so it is a data-driven technique that follows a deductive approach to reach a conclusion. Okay, deductive approach to reach a conclusion. And the second type is a backward chaining. So often used in the formulation plans, the backward chaining is an alternative to the forward chaining. So it is a goal-driven technique that follows the inductive approach or associative reasoning. Okay. So it follows the data-driven reasoning and it follows the goal-driven technique. It is a deductive approach and it follows the inductive approach. Okay. So first thing is the forward chaining. So inference engine is the component of the intelligence system in artificial intelligence which applies some logical rules to the knowledge base to infer the new information from the known facts. Okay, so there are we have a multiple facts. So based on these facts, we are inferring the new information. So this new information is our conclusion. So here the forward chaining is also known as a forward deduction or a forward reasoning method when using the inference engine. So this forward chaining is a form of reasoning. We start with the atomic sentences in the knowledge base and applies the inference rules. So here in the forward chaining we are using the modus ponens rules in the forward direction to extract the more data until the goal is reached. So in the forward chaining algorithm, it starts from the known facts, triggers all the rules whose premises are satisfied and add their conclusion to the known fact. Okay. So this process is repeats until the problem is solved. Okay. So here we have a multiple facts 1, 2, 3, 4. So if we are using the fact 1 and fact 2, so where we get some decision, fact 3 and fact 4, in the ORing part we get some decision 2. Okay, and we are using the AND, so here we get the decision 4. Okay, so this is our final conclusion. So this process repeated until the problem is solved or until the conclusion is not get. Okay, so what are the properties of forward chaining? So from the starting from the fact to the conclusion. Okay, starting from the fact to the conclusion. So here we are using the forward chaining. So what are the properties? It is a down-up approach and it moves as it moves from the bottom to top. Then the second thing is it is a process of making the conclusion based on the known fact or data. Okay, here we are making some getting some decision or conclusion based on the known facts or data. So by starting from the initial state and reach to the goal state, we have an initial state and based on these initial conditions we get some conclusion, we get some goal state. So forward chaining approach is also called as a data driven, as we reach to the goal using the available data, so that it is called as a data driven approach. And the last property is forward chaining approach is commonly used in the expert system such as business applications or business system and some production rule system also. Okay, so see here there is one example related to the forward chaining rule based system.
So example is, as per the law, it is a crime for an American to sell the weapons to the hostile nation. Okay, as per the law, it is a crime for the America to sell the weapons. Okay, crime for the America to sell the weapons to the hostile nation. So country A, an enemy of America. Okay, so there is one country which is an enemy of America, has some missiles, and all the missiles were sold to it by Robert. So he is an American citizen. Okay, so we have to prove that the Robert is a criminal. So we have these facts. Okay, there are multiple facts. So based on the fact हमें क्या करना है, some conclusion निकालना है कि प्रूफ करना है कि रॉबर्ट क्रिमिनल है या नहीं. ओके, सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड चेन को यूज़ करेंगे. हमारे पास सम फैक्ट्स होंगे, डेटा होगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी हैव टू प्रूव some things, or we have to conclude some things. Okay, so as per the law, it is a crime for America to sell the weapons to the hostile nation. Okay, and country A is an enemy of America. So country A is an enemy of America, has some missiles, and all these missiles are sold it by the Robert. Okay, and रॉबर्ट इज़ एन अमेरिकन सिटीज़न. ओके, सो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती हूँ कि एक अमेरिका का लॉ है कि वो वेपन्स हॉस्टाइल नेशंस को सोल्ड आउट नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता. सो कंट्री ए क्या है, कंट्री ए जो है वो एनिमी है, एनिमी ऑफ अमेरिका. ओके, कंट्री ए जो है वो एनिमी ऑफ अमेरिका. ओके, सो हमारे पास लॉ है, कंट्री एनिमी ऑफ अमेरिका हैज़ सम मिसाइल एंड ऑल दिस मिसाइल्स वेर सोल्ड इट बाय द. सो कंट्री ए को किसने मिसाइल सोल्ड आउट की है, रॉबर्ट ने. रॉबर्ट किसका सिटीज़न है, अमेरिका का सिटीज़न है. ओके, अमेरिका का सिटीज़न कौन है, रॉबर्ट. बट कंट्री ए जो है वो एनिमी है अमेरिका की. सो यहाँ पे लॉ क्या कहता है कि अमेरिकन कोई भी पर्सन हो वो वेपन्स को सेल नहीं कर सकता. ओके, ये क्राइम होगा. बट रॉबर्ट ने क्या किया है, कंट्री ए को मिसाइल्स सोल्ड आउट किए हैं. बट अमेरिका का सिटीज़न कौन है, आर जो है, रॉबर्ट जो है वो अमेरिका का सिटीज़न है. सो अमेरिका का कोई भी सिटीज़न कंट्री ए को कोई भी वेपन्स सेल नहीं कर सकते. सो रॉबर्ट ने क्या किया है, यहाँ पे क्राइम किया है. सो हमें क्या प्रूव करना है कि क्रिमिनल कौन है इसमें से, अमेरिका क्रिमिनल है या कंट्री ए है कि उसने एक्सेप्ट किए वो मिसाइल्स, या फिर रॉबर्ट क्रिमिनल है. सो हमने ये सब हमारे पास फैक्ट्स है कि अमेरिका का एक लॉ है, कंट्री ए उसकी एनिमी है, कंट्री ए के पास सब मिसाइल्स है जो कि अमेरिका के सिटीज़न ने उसके सोल्ड आउट किए हैं, दैट इज़ रॉबर्ट ने उसको सोल्ड आउट किए हैं. सो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, रॉबर्ट इज़ अ क्रिमिनल बाय यूजिंग द फॉरवर्ड चेन. ओके, सो सी हियर देयर आर सम फैक्ट्स कन्वर्जन इनटू द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. ओके, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो इट इज़ अ क्राइम फॉर एन अमेरिकन टू सेल द वेपन्स टू द हॉस्टाइल नेशन. ओके, सो अमेरिका पी एंड वेपन्स क्यू. सो अमेरिका का पी वी आर यूजिंग द वेपन्स क्यू सोल्ड इट बाय द अमेरिकाज वेपन आर. किसको उसने सोल्ड आउट किए, हॉस्टाइल नेशंस के. सो इम्प्लाइज दैट क्रिमिनल पी. सो ऑटोमेटिकली क्रिमिनल किसका होना चाहिए, अमेरिकी का. अमेरिकी का पर्सन के पास सम वेपन्स है, उसने सेल किए हैं हॉस्टाइल नेशन को. सो सेल के अंदर क्या आ जाएगा, अमेरिका भी होगा, वेपन्स भी होगा एंड हॉस्टाइल नेशन आर भी होगा. सो हमें प्रूव क्या करना है, क्रिमिनल पी. ओके, क्रिमिनल को होना चाहिए अमेरिका का सिटीजन. सो ये एक हमारे पास गिवन फैक्ट है. सो कंट्री ए हैज़ सम मिसाइल्स, दैट मीन्स पी ओन्स ए कॉमा पी. ओके, कंट्री ए हैज़ सम मिसाइल्स एंड मिसाइल पी. सो यहाँ पे हमने मिसाइल्स जो है वो सारे अमेरिका का है. ओन्स कंट्री ए क्या है हमारे पास, कंट्री ए हमने क्या डिनोट किया है, कंट्री ए ओन्स अमेरिका के मिसाइल्स उसने ओन्स किए.
So it can be written into the two defined clause by using the existential instantiation introduction the new constant T1. ओके, सो यहाँ पे हमने कांस्टेंट दिया है ओन्स A, T1 और मिसाइल्स को हमने नाम दिया है T1, क्योंकि हम यहाँ पे इजीली नहीं कह सकते कि कंट्री ए के पास जो भी मिसाइल्स है वो अमेरिकी के हैं। ओके, ये हम नहीं प्रूव कर। सो हमने क्या किया है, उसको न्यू कांस्टेंट से इनिशलाइज किया है ओन्स A, T1 और मिसाइल एक T1 हमने कंसिडर किया है। ओके, सो ऑल द मिसाइल्स वेयर सोल्ड टू द कंट्री ए बाय द रॉबर्ट। तो ये तो हमें पता है कि जो भी मिसाइल्स है कंट्री ए के पास उसको किसने सोल्ड आउट किए हैं, रॉबर्ट ने। सो मिसाइल्स पी अमेरिकी के मिसाइल्स एंड ओन्स A, P किसने ओन्स किए, कंट्री ए ने वो मिसाइल्स को ओन किया है। इम्प्लाइज दैट हु सेल्स किसने सेल्स किए हैं, रॉबर्ट, किसका सिटीजन है वो अमेरिकी का, और किसको सोल्ड आउट किए उसने, कंट्री ए को सोल्ड आउट किया। ओके, सो दिस इज अ फोर्थ फैक्ट। देन ऑल द मिसाइल्स वेयर सोल्ड टू द कंट्री ए बाय द रॉबर्ट। ओके, सो ये हमने चेक किया। देन मिसाइल्स आर वेपन्स। सो मिसाइल्स मीन्स वॉट, हमारे पास वेपन्स है वो किसके है, अमेरिकी का है। सो मिसाइल्स किसके है, पी, इम्प्लाइज दैट वेपन्स अमेरिकी के, पी। सो एनिमी ऑफ अमेरिका इज नोन एज अ हॉस्टाइल। ओके, एनिमी ऑफ अमेरिका जो भी होगा वो हॉस्टाइल है, क्योंकि लॉ क्या है कि लॉ क्या कहता है, सो इट इज़ अ क्राइम फॉर एन अमेरिका टू सेल द वेपन्स टू द हॉस्टाइल नेशन। ओके, सो ये हमारे पास सेंटेंस है। सो एनिमी अमेरिके का पी, अमेरिका implies that hostile P. Okay, so country A is an enemy of America. So country A, so P को हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पे, country A. So enemy A, America and Robert is a American. So American in bracket Robert. Okay, so ये सारे पास हमारे पास फैक्ट है, इससे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है by using the forward chaining. सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम फॉरवर्ड यूज़ करते हैं, सो डाउन अप अप्रोच यूज़ करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दी बॉटम टू टॉप। ओके, सो बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे। सो हियर द स्टेप 1 इज व्हाट, स्टार्ट विद द नोन फैक्ट्स एंड इट विल चूज द सेंटेंस विच डू नॉट हैव द इम्प्लीकेशन। ओके, डू नॉट हैव द इम्प्लीकेशन। सो इनिशियली हमारे पास इम्प्लीकेशंस किसके अंदर नहीं है वो हमें चूज़ करना है, जैसे कि अमेरिकन रॉबर्ट, मिसाइल T1, ये है हमारे पास मिसाइल T1। देन ओन्स A, T1, ये इसके पास इम्प्लीकेशंस नहीं है। एंड एनिमी A, अमेरिका, एनिमी A, अमेरिका। सो सेंटेंस हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, 3। सो 1 के अंदर हमारे पास इम्प्लीकेशन है, 4 के पास भी है, 2, 3 यहाँ पे इम्प्लीकेशंस है, यहाँ पे इम्प्लीकेशंस है एंड रिमेनिंग 7, 8 के ऊपर इम्प्लीकेशन नहीं है। सो हमें पहले क्या करना है, जो जिसके अंदर हमने इम्प्लीकेशंस यूज़ नहीं किया है, सो हमें उस सारे फैक्ट्स को पहले कंसिडर करना है। ओन्स A, T1, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, 7th इक्वेशन एंड 8th इक्वेशन। सो यहाँ पे हमने उसको यूज़ किया है। सो दिस इज ऑल फैक्ट्स, इट विल बी रिप्रेजेंटेड इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। स्टेप 2 इज व्हाट, those facts which infer from available facts and with the satisfied premises. So ये जो हमारे फैक्ट्स है वो किस फैक्ट्स के साथ इन्फर करते हैं वो हमें चेक करना है। ओके, सो रूल 1 क्या है हमारे पास, दिस इज अ रूल 1, डज नॉट सेटिस्फाई द प्रीमाइसेस, सो इट विल बी नॉट एडेड इन द फर्स्ट इटरेशन। ओके, देन रूल 2 and 3 आर ऑलरेडी एडेड and then rule 4 is what, it's satisfied with the substitution P, T1. okay, P, T1. so जहाँ पे हमारा सेल्स रॉबर्ट P, A है वहाँ पे हम किसको प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 और 3 तो इक्वेशन है। सो इसको हमें क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है, क्योंकि देखो ओन्स मिसाइल यहाँ पे है, तो इम्प्लीकेशंस के अंदर हमारे पास क्या है, सेल्स रॉबर्ट P, A। सो P को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, T1 के साथ रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पे रॉबर्ट एज इट इज़ होगा, T1 एंड A। सो इस तरह से हमारा रूल 4 कंजक्शंस के अंदर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखो मिसाइल्स एंड ये यहाँ पे हमने इम्प्लीकेशन यूज़ किया है। ओके, ये क्या डिनोट करेगा हमारा एंड। ओके, क्योंकि ये दोनों
एक ही स्टेटमेंट का पार्ट है। यहाँ पे देखो एंड यूज़ किया है, अगर मिसाइल्स पी है, किसने ओन्स किए है, कंट्री ए ने उसको अगर ओन्स किए है, सो ये दोनों कंडीशंस एंड के अंदर है। मीन्स व्हाट, सेल्स किसने किया है, रॉबर्ट ने सेल्स किया है, ओके, मिसाइल्स को, किसको, कंट्री ए को, ओके। सो इस तरह से हमारा एंड यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा रूल 4 के लिए, इक्वेशन 4 के लिए। देन रूल 6 इज़ व्हाट, ओके, 4 तो ठीक है, 5 भी रूल है हमारे पास, बस मिसाइल पी और वेपन्स, ओके। सो मिसाइल पी और वेपन्स यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट इज व्हाट, रूल 6। रूल 6 क्या कहता है, सो इट सेटिस्फाइड विद द सब्सटीट्यूशन P, A, अमेरिका, सो द हॉस्टाइल P is added which can infer from the rule 7, okay। सो यहाँ पे देखो एनिमी P, अमेरिका, सो एनिमी A, अमेरिका, सो जहाँ पे हमारा एनिमी A, अमेरिका है उसको हम रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हॉस्टाइल P मिलेगा, ओके। दैट मीन्स जहाँ पे हमने प्लेस किया है, जहाँ पे हमने ये 7th वाला इक्वेशन जो है एनिमी A, अमेरिका, सो ऑटोमेटिकली हम वो किसको मैच करेंगे, इम्प्लीकेशंस के अंदर हॉस्टाइल पी को हमें किसके साथ रिप्लेस करना है, ए के साथ रिप्लेस करना है। सो हमने यहाँ पे और के अंदर, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो ये और के अंदर आ जाएगा एनिमी A, अमेरिका, सो वी गेट द हॉस्टाइल ए, ओके। एंड सिमिलरली फॉर रूल 5 ऑल्सो, रूल 5 के अंदर भी मिसाइल पी इट गेट्स वेपन्स पी, सो मिसाइल्स T1 है, इसको हमने रिप्लेस किया है T1 के साथ। सो यहाँ पे हमें पास वेपन्स क्या है, क्योंकि हमें पता नहीं है, मिसाइल्स तो बहुत सारी हो सकती है, उसमें से वेपन्स उसने चूज़ किया है, ओके। सो ये वेपन्स और के अंदर आ जाएगा। सो ये जहाँ पे हम एंड इस टाइप का यूज़ करते हैं हाफ सर्कल, ओके। सो ये हमारा एंड डिनोट करता है, एंड जहाँ पे सिंगल इक्वेशन है वो और के अंदर होंगे, ओके। सो दिस आर दी known facts which are inferred from the available facts, okay। सो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल फैक्ट्स है, इससे हमने क्या किया है, न्यू फैक्ट को इन्फर किया है। देन स्टेप 3 इज व्हाट, चेक द रूल 1 इज सेटिस्फाइड विद द सब्सटीट्यूशन P/Robert Q, T1 R, A, so we can add the criminal Robert, so which infer all the available facts and it is proved that the Robert is a criminal, okay। so see here अमेरिका रोबोट, सो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले इक्वेशंस के साथ मैच करना है। ये हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन है जिसके अंदर अमेरिका P, वेपन्स Q, सेल्स PQR एंड हॉस्टाइल R, ओके। सी हियर, सो इसको तो हमने इन्फर नहीं किया था, सो अमेरिका रोबोट, देन वेपन्स T1, सेल्स रोबोट T1 A एंड हॉस्टाइल ए। सो सारे को अगर हम यूज़ करेंगे तो एट दी एंड इम्प्लीकेशन हमारा क्या दिखाएगा, क्रिमिनल P। P को हमने किसके साथ रिप्लेस किया है, P जहाँ पे होगा, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है। सो ये वाले केस के अंदर जहाँ पे हमने, यहाँ पे P होगा A, T1, सॉरी वेपन्स T1 तो एज इट इज़ है, P यहाँ पे है तो हॉस्टाइल A होगा यहाँ पे। सो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा, क्रिमिनल क्या होगा, हमारा रॉबर्ट होगा, ओके। सो दिस इज़ अ इम्प्लीकेशंस। सो फाइनली हमें प्रूफ क्या मिला है, कंक्लूजन क्या मिला है कि रॉबर्ट इज़ अ क्रिमिनल यूजिंग द फॉरवर्ड चेनिंग एप्रोच, जहाँ पे हमने बॉटम से स्टार्ट किया है अप टू द टॉप तक। सो बॉटम से हमने एक एक फैक्ट्स को चेक किया, उसके साथ बाय यूजिंग दिस फैक्ट हमने क्या किया, न्यू फैक्ट्स को इन्फर किया है, एंड जो भी न्यू फैक्ट्स है उससे हमें क्या मिला है, ये स्टेटमेंट मिला है कि क्रिमिनल इज़ अ रोबोट और रोबोट इज़ अ criminal, okay, by using the forward chaining. So second type of rule based system is a backward chaining. So again this is a part of inference engine and it is a component of intelligence system in artificial intelligence which applies the logical rules to the knowledge base and to infer the new information from the known facts, okay। So backward chaining is also known as a backward deduction or backward reasoning method when using an inference engine. So backward chaining algorithm is a form of reasoning which start with the goal and works backward chaining through the rules to find known facts that support the goal,
okay, known facts that support the goal. So here in previous forward chaining we are going to discussing about the known facts. We have a known facts and based on the known facts हमने क्या किया है, डिसीजन चेक किया एंड डिसीजन से हमें सब फाइनल डिसीजन मिला है. ओके, सो सेम हमें बैकवर्ड चेनिंग के अंदर क्या करना है, हमारे पास एक डिसीजन होगा ऑलरेडी, उसमें से मीन्स गोल से हमें क्या करना है, उसके फैक्ट्स को फाइंड आउट करना है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर. फॉरवर्ड में हमने क्या किया था, जो भी हमारे पास नोन फैक्ट्स है उससे हमने गोल स्टेट को फाइंड आउट किया था. और बैकवर्ड के अंदर जो हमारे पास गोल स्टेट पता है सो उससे हमें क्या करना है, फाइनल जो भी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल फैक्ट से उसको फाइंड आउट करना है. ओके, सो दिस इज़ अ backward reasoning which is called as a backward deduction. We start with the goal and works backward. So what are the properties of backward chaining? It is known as a top down approach, starting from top to down approach. Backward chaining is based on modus ponens inference rule. Okay, modus ponens inference rule. The goal is broken into the sub goals to prove the facts true. It is called as a goal driven approach because first we are getting the goal state and then finding the initial state. As it list of the goal decides which rules are selected and used, and it is used in the game theory, automated theorem proving tools, inference engine, and proof the assistant and various artificial intelligence applications also. Okay, where we can use the backward chaining, and the backward chaining method mostly used in the depth first search strategy for the proof. So again there is an example related to this backward chaining. So this example we already discussed in the forward chaining. This same example we are using in the backward chaining, but in the top down approach. Okay, starting from top to bottom approach. So example is, as per the law, it is a crime for an America to sell the weapons to the hostile nation. So country A is an enemy of America, has some missiles, and all the missiles were sold it by the Roman. So who is an American citizen? So we have to prove here Robert is a criminal. But हमारे पास बैकवर्ड के अंदर हमें क्या करना है, गोल स्टेट से हमें इनिशियल फैक्ट्स को फाइंड आउट करना है. ओके, रिवर्स ऑर्डर में. सो रूल्स है हमारे पास इस तरह से स्टेप्स. सो ये तो रूल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर, सेम रूल्स को हमें यूज़ करना है. सो स्टेप 1 क्या होनी चाहिए, क्रिमिनल रॉबर्ट, ये हमारी स्टेप 1 होगी. सो हियर टेक द गोल फैक्ट एंड फ्रॉम द गोल फैक्ट इन्फर द अदर फैक्ट एंड एट लीस्ट प्रूव दोज फैक्ट ट्रू. So our goal fact is a Robert is a criminal. So following is the predicate of it. So criminal Robert is our goal state. Then step 2 is what? Infer the other facts from the goal fact which satisfy the rules. Okay, in the rule 1, and the goal predicate the criminal Robert is presented with the substitution. Okay, so criminal Robert हमने कहाँ पे substitute किया है, equation 1. so उसको हमें क्या करना है, यूज़ करना है. So America Robert, weapons Q, सेल्स रॉबर्ट Q, R, रॉबर्ट Q, R एंड हॉस्टाइल R. सो ये हमने क्या किया, एज इट इज़ यूज़ किया है. देन स्टेप 3 इज extract the further fact missile Q which infer from the weapon Q and it satisfied the rule 5. So weapon Q is also true with the substitution of constant T1 at the Q. So हमें क्या करना है, चेक करना है रिमेनिंग कंडीशंस को. अमेरिके को हमने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है, सो ये तो हमारा ब्लैंक ही रहेगा. देन वेपन्स Q, किसको हम इम्प्लाइज कर रहे हैं, मिसाइल्स P. ओके, वो हमें क्या करना है, बैकवर्ड जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है. सो मिसाइल P होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे हमने मिसाइल, यहाँ पे Q यूज़ किया है तो यहाँ पे भी हम Q यूज़ करेंगे. जहाँ पे सब्सटीट्यूशन क्या है, Q, T1. ओके, मिसाइल का सब्सटीट्यूशन क्या है यहाँ पे, Q, T1. देन नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, द इन्फर द फैक्ट मिसाइल T1 एंड ओन्स A, T1 फ्रॉम द सेल्स रोबोट T1, R. सो रोबोट T1, R सेल्स कहाँ पे हमारा, ये वाला. यहाँ से हम क्या करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे जहाँ पे मिसाइल P एंड ओन्स A, P होगा. सेम मिसाइल T1, यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूशन T1 के लिए दिया है, T1
A, T1. ओके, सो रिमेनिंग कुछ भी नहीं है तो हम ब्लैंक रखेंगे. एंड लास्ट थिंग इज अ स्टेप 5. So infer the fact enemy A, America from the hostile A. सो हॉस्टाइल ए क्या है हमारे पास, ये वाला इम्प्लीकेशन है जहाँ पे हमें क्या इम्प्लाइज करना है, एनिमी पी कॉमा अमेरिका, बैकवर्ड डायरेक्शन एनिमी ए कॉमा अमेरिका. ओके, सो ये हमारा एम्प्टी होगा, ये एम्प्टी और ये भी एम्प्टी. सो इस तरह से हमने यहाँ पे गोल स्टेट से हमने इनिशियल पोजीशंस को फाइंड आउट किया है. मिसाइल क्यू है, मिसाइल T1 ओन्स A, T1, एनिमी A, अमेरिका. देन सो हियर, so this is a part of backward chaining starting from the top to bottom, starting from the goal state to the initial facts. so हमारे पास initial facts इस तरह से थे. okay, so next point is a difference between forward and backward chaining. So first difference is in the forward chaining start from the known facts and applies the inference rule to the extract more data until it reaches to the goal. Okay, reach to the goal. In the backward chaining starting from the goal and reach to the required fact that support the goal. It is a bottom up approach, it is a top down approach. It is known as a data driven interface because where we have first data and by using this data we reach to the goal. Okay, so that it is called as a data driven approach. In the backward chaining, the first we have a goal and we reach to the facts. Okay, so this is called as a goal driven technique. It is applies in the breadth first search strategy, it applies in the depth first search strategy. Okay, फॉरवर्ड चेनिंग टेस्ट फॉर ऑल द अवेलेबल रूल्स, हर एक रूल्स को हमें क्या करना है, टेस्ट करना है. एंड इन द बैकवर्ड चेनिंग ओनली टेस्ट फॉर द फ्यू रिक्वायर्ड रूल्स. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज द फॉरवर्ड चेनिंग इज सुटेबल फॉर द प्लानिंग, monitoring, control and interpretation applications, and this backward chaining is suitable for the diagnostic, prescriptions and the debugging application. Okay, so forward chaining planning के अंदर मीन्स हमारे पास सम डेटा होगा. बाय यूजिंग दिस डेटा हम क्या करेंगे, गोल स्टेट को फाइंड आउट करेंगे. मॉनिटरिंग, कंट्रोल, मॉनिटर करने के लिए सम इनिशियल वैल्यूज होंगे, उससे हम मॉनिटर करने के बाद फैक्ट्स, रूल्स को चेक करने के बाद हमें सम कंक्लूजन मिलेगा. ओके, सो दिस इज अ एप्लीकेशंस ऑफ फॉरवर्ड चेनिंग. एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बैकवर्ड चेनिंग हियर, डायग्नोस्टिक. ओके, तो पहले हमें डायग्नोसिस पता है. ओके, डायग्नोस क्या है वो पता है. सो मीन्स व्हाट, गोल पता है. सो उससे वो कहाँ से मिला है, क्या रीज़न होगा, क्या ये डायग्नोस किस वजह से ये डिसीज़ को हमने डायग्नोस किया है. ओके, सो ये क्या है, हमारे पास गिवन जो डेटा है, गोल जो है, उसको हमें क्या करना है, प्रीवियस वाले कंडीशंस को चेक करना है कि उससे हमें ये गोल स्टेट क्यों मिला है. ओके, सो डायग्नोसिस क्या होगा, बैकवर्ड चेनिंग होगा. प्रिस्क्रिप्शंस एंड डीबगिंग एप्लीकेशंस. ओके, डीबगिंग एप्लीकेशन भी क्या है, बैकवर्ड चेनिंग. डीबगिंग करने के बाद हम उसको फिर से चेक करेंगे कि ये डीबग करने के बाद क्यों इस टाइप का एरर शो किया है, क्या एरर शो हो सकती है. तो हम क्या प्रीवियस वाला जो भी फैक्ट्स है, रूल्स है, उसको हम चेक करेंगे, प्रोग्राम को हम चेक करेंगे. So this is a debugging application. So these are the applications of a backward chaining. Next point is a forward chaining can generate an infinite number of possible conclusion. Okay, infinite number of possible conclusions हमें मिल सकते हैं facts के थ्रू. But in the backward chaining generate a finite number of possible conclusion. Okay, because हमारे पास some finite number of conclusion होंगे, goals होंगे, उससे हम facts पता करने वाले हैं. So it operates in the forward direction, it operates in the backward direction. It is the aim for any conclusion and it is the aim for the required data. Okay, so this is the difference between the forward chaining and the backward chaining. Thank you.